اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اکنامک فورتھ سیمسٹر، آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر 2. ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 2. پہلا چیپٹر جو تھا وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا. آج ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینڈ انالیسس. ٹھیک ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینڈ انالیسس یہ ہمارے پاس سیکنڈ چیپٹر ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ میں، پرنسپل اکاؤنٹنگ میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ہم اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ بناتے ہیں، اور پھر فائنینشیل مینیجرز جتنے بھی ہیں وہ ان کے بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، انالیسس کر کے، اور ان کے بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انویسٹرز بھی ہو گئے، اسٹیک ہولڈرز بھی ہو گئے، اسٹاک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، گورنمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ جتنے بھی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان اسٹیٹمنٹ کی انالیسس کرتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اسٹاک ہولڈر رپورٹ. سب سے پہلا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کو ہم اسٹاک ہولڈر رپورٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ رپورٹ ہمارے پاس اینول رپورٹ ہوتی ہے جو کہ ہر سال شائع ہوتی ہے. اینڈ پبلک اونڈ کارپوریشن جو ہے یہ رپورٹس بناتی ہے. ٹھیک ہے، دیز آر دی اینول رپورٹس دیٹ publicly owned corporation must provide to stockholders. ٹھیک ہے، یہ اینول رپورٹس ہوتی ہیں جو پبلکلی اونڈ آرگنائزیشن پرووائڈ کرتی ہے، مسٹ پرووائڈ، ٹھیک ہے، ضرور پرووائڈ کرتی ہے ٹو دیئر اسٹاک ہولڈرس. ٹھیک ہے، اسٹاک ہولڈرس کون ہوتے ہیں؟ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، پریفرڈ اسٹاک اور کامن اسٹاک. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تھرو شیئر، تھرو بانڈ، تھرو سیکورٹیز. ٹھیک ہے، نیکسٹ کہا گیا ہے کہ اٹ summarizes and documents the firm's financial activities during the past year. ٹھیک ہے، اور یہ سمرائز کرتا ہے، مینس ان کا خلاصہ، ایک نچوڑ ان کا بتاتا ہے، اور اس نچوڑ کو، اس خلاصے کو ڈاکومنٹ کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک رپورٹ کی شکل میں. اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ جتنی بھی فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آرگنائزیشن کی جو پچھلے سال انہوں نے پرفارم کی ہے، وہ ایکٹیویٹیز یہ کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈ کرتے ہیں، اور ان کو سمرائز کرتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو اسٹاک ہولڈر اسٹیٹمنٹ جو ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس جو ہوتی ہیں یہ اسٹاک ہولڈرز رپورٹ کی شکل میں ہوتی ہیں، جس میں کیا کرتی ہے؟ پبلکلی اونڈ اور موسٹلی پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی آج کل کیا کرتی ہیں؟ لائبل ہوتی ہیں کہ وہ کیا کریں؟ اپنی اینول رپورٹس بنائیں، اور اس میں جتنی بھی اینول کارکردگی ہوتی ہے وہ یہ لوگ کیا کر لیں؟ پرفارم کریں، اور اس کو جو ہے ایک رپورٹ کی شکل میں بتائیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم 4 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے. وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو کہ پبلک اور پرائیویٹ کارپوریشن کیا کرتی ہے؟ یوز کرتی ہیں اپنی پرفارمنس کو شو کرنے کے لیے، اور اپنے جو پریویس فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان کو شو کرنے کے لیے ٹو جنرل پبلک کیا کرتی ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتی ہے اور ان اسٹیٹمنٹ کو ایشو کرتی ہے. ٹھیک ہے، ان اسٹیٹمنٹ کو جو ہے پھر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن یا ڈفرینٹ اور ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس جمع کرواتی ہے، اور وہ پھر ان کو کیا کرتی ہے؟ پبلک کے لیے اویلیبل کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو the 4 key financial statement required by the SEC for reporting
स्टेक शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये जो है 4 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो मांगती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो इन रिपोर्ट्स को दें, और ये रिपोर्ट्स जो होती हैं फिर वो आगे शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हैं हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, थर्ड वन है द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और फोर्थ वन है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। अब हम ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम सीखेंगे और इनकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये जितने भी स्टेटमेंट है, तकरीबन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये ऑलरेडी आप लोग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो अपने शेयर होल्डर्स को जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रीवियस ईयर में उन्होंने परफॉर्म की होती हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, बताती हैं, शो करती हैं, और जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बेस पे फिर शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस को जो है वो एक्सटर्नल यूज़र जो हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। किस बेस पे किस रीज़न की वजह से, ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल है एक्सटर्नल यूज़र की जो कि यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस को। तो एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। फोकस ऑन द फर्म्स लिक्विडिटी। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या करते हैं, फोकस करते हैं फर्म्स की लिक्विडिटी पे कि एक कंपनी या एक फर्म की जो है वो कितनी लिक्विडिटी है, कितनी जल्दी जो है वो अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर सकता है इनटू कैश। और ये ट्रेड क्रेडिटर्स जो होते हैं, ये सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। कौन से सप्लायर्स होते हैं, जो कि आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं। तो जितने आपके करंट एसेट्स ज़्यादा होंगे, उतनी ही आपकी फर्म की लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इनका फोकस ज़्यादातर लिक्विडिटी पे होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम लिक्विडिटी करेंगे तो वो कौन लोग उसमें पे फोकस करेंगे, वो ट्रेड क्रेडिटर्स जो है उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बॉन्ड होल्डर्स के बारे में पढ़ते हैं कि बॉन्ड होल्डर्स क्या करते हैं, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म्स, ठीक है। बॉन्ड होल्डर्स का फोकस किस चीज़ पे होता है, लॉन्ग टर्म कैश फ्लो पे, कि कितना देर तक जो है फर्म्स को जो है वो कैश फ्लो आ रही है, ठीक है। कितनी देर तक फर्म को जो है वो कैश फ्लो आ रही है। तो उतने जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो पे फोकस करते हैं। इस तरह नहीं है कि 1 महीने 2 महीने प्रॉफिट हो गया और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट आना बंद हो गया, नहीं, बल्कि वो कहेंगे कि हर साल, हर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल चलता रहे कैश फ्लो, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट आता रहे। इसी तरीके से थर्ड वन क्या है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स का फोकस किस चीज़ पे होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होता है, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। ये शेयर होल्डर की डिमांड होती है, ठीक है, शेयर होल्डर का फोकस होता है। और कंपनी के लॉन्ग टर्म हेल्थ का मतलब ये है कि वो हमेशा बरकरार रहे, वो कंपनी, उसकी ज़िंदगी जो है
वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि 5 साल बाद उसके ख़त्म होने के चांसेस हो या 10 साल बाद उसके ख़त्म होने के चांसेस हो। तो उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ होनी चाहिए। जब तक दुनिया है, जब तक ज़िंदगी है, ये फर्म जो है वो प्रॉफिट हासिल करती रहे और ग्रो करती रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब इंटरनल यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम इन स्टेटमेंट को इंटरनली कैसे यूज करते हैं, इंटरनल यूजेस की एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है प्लान। हम जितने भी स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं, हम उनको इस वजह से परफॉर्म करते हैं उनकी एनालिसिस, ताकि हम प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सकें, फ्यूचर के बारे में हम प्लान कर सकें कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, फोकस ऑन असेसिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड evaluating potential firms opportunities। हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? करंट फाइनेंशियल पोजीशन पे। हम करंट फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी स्टेटमेंट से हमें पता चलेगी? बैलेंस शीट से। करंट फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम ग्रैब कर सकते हैं, जिन तक हम पहुंच सकते हैं, जिन तक हम अपने एक्टिविटीज़ को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम करंट पोजीशंस को देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, मौके ढूंढते हैं जो कि फर्म्स के लिए, हमारे बिजनेस के लिए मुस्तफीद होते हैं, हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा मुफीद होते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है कंट्रोल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आपके सामने कोई रिकॉर्ड पड़ा होता है, जब आपके सामने कोई चीज़ पड़ी होती है, तो आप उसको अगर एनालाइज करते हैं तो उसको आप आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उस पे आप रिटर्न को देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने 1 लाख रुपए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जमा किए हैं, 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एसेट्स पे या डिफरेंट एसेट्स पे आपने लगाए हैं, तो उससे आपको कितना रिटर्न मिला है। ठीक है, या तो वेरियस एसेट्स पे या एसेट्स की एफिशिएंसी पे। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप कोई दूसरा एसेट्स खरीद लें, ऐसे एसेट्स जो आपको ज़्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, और या फिर उस एसेट्स की एफिशिएंसी को ज़्यादा कर दें, कारकर्दगी को ज़्यादा कर दें। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस ले आएं। तो कंट्रोल से हम ये देखते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे लग रही है और उससे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आप लोग कंट्रोलिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का क्या मतलब है? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर्स फंड्स एनालाइज द फर्म। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सप्लायर्स के जो फंड्स होते हैं हम ये जान जाते हैं। हमारा फोकस जो होता है वो इस चीज़ पे होता है कि हमने जो सप्लायर से फंड लिया है, हमने जो लोगों से पैसा लिया है, उसको हम एनालाइज करेंगे कि उन पैसों को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। जो सप्लायर से हमारे पास रिसोर्सेज आई हैं उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बहुत ही मशहूर, आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। ये ऐसे स्टेटमेंट्स है जिनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकती। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक बैलेंस रखती है और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रॉफिट को मेजर कर रही होती है, अपने प्रॉफिट के बारे में जानने की कोशिश करती है। ठीक है,
तो प्राइमरी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे पास 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है बैलेंस शीट और दूसरा हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये दो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन इन पे बहुत ज़्यादा और बहुत ही केयरफुली इन स्टेटमेंट्स को बनाती हैं, ठीक है। A summary, a balance sheet is a summary of a firm's financial position on a given date that shows total assets equal total liability plus owner equity. ये हमारे पास एक समरी होती है। बैलेंस शीट किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी माशी इस्तेहकाम की एक समरी होती है जो कि किसी भी गिवन डेट पे, किसी भी तारीख पे हमें क्या बताती है, हमें ये बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो वसाइल हैं, वो बराबर होती हैं लाइबिलिटीज के और ऑनर इक्विटी के, ठीक है, कि उस डेट पे हमारे एसेट्स जो हैं वो कितने बैक कर रहे हैं लाइबिलिटीज पे और कितने एसेट्स जो है वो बैक कर रहे हैं ऑनर इक्विटी पे। बैक मींस कि कितने एसेट्स हमने लाइबिलिटी से खरीदे हैं, हमारी लाइबिलिटी की पोजीशन क्या है, और कितने एसेट्स जो हैं वो हमारे अपने हैं, मींस ऑनर्स की इक्विटी है, ऑनर्स ने अपने शेयर्स खरीद के पैसे दे के जो है वो उन एसेट्स को खरीदा है, ठीक है। जिस तरीके से अगर कोई ऑनर जो है वो गाड़ी खरीदता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो ऑनर इक्विटी होगी और उसकी प्राइस जो होगी वो ऑनर इक्विटी और प्लस उसके साथ साथ जो है वो हम एसेट्स में भी शुमार करेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट जो है हमें एक समरी प्रोवाइड करती है और हमें किसी भी गिवन डेट पे हमारे जो एसेट्स हैं उनको इक्वल करती है लाइबिलिटी के साथ, और लाइबिलिटी के साथ जब हम ऑनर इक्विटी को जमा करते हैं तो ये एसेट्स टोटल एसेट्स के बराबर होती है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। A summary of a firm's revenue. A summary of a firm revenue and expenses over a specified period ending with net income or loss for the period, ठीक है, कि फर्म्स की जितनी भी रेवेन्यू है, जितने फर्म्स में जो पैसा कमाया होता है उसको, और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए, पैसे के कमाने के लिए हमने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जब हमने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस पे की हुई हैं, ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड हम फिर उसमें देखते हैं कि हमें नेट इनकम मिला है और लॉस मिला है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक कंपनी ने कितनी रेवेन्यू जनरेट की है और उन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना एक्सपेंस उन्होंने पे किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। इस इनकम स्टेटमेंट में जो है आप लोग देख सकते हैं टेबल नंबर 2.1 में ये स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो कि बर्लेट कंपनी इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो $30 लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि जितनी भी अमाउंट है इसके एंड में 30 है, ठीक है, 1000 में है ये सारी अमाउंट्स। तो हमेशा हर जगह पे 30 लिखने से अच्छा है कि उसके अमाउंट्स की वो जो स्टेटमेंट है उसके साथ 30
लिख लिए जाते हैं, ठीक है। तो बर्लेट कंपनी इनकम स्टेटमेंट है जो कि हम पढ़ेंगे, और ये तो ऑलरेडी आप लोगों के पास जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, और किसी भी बुक में आप लोग इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर द ईयर 2003-2002 की इनकम स्टेटमेंट है, दिसंबर 31st 2002 और दिसंबर 31st 2003 की स्टेटमेंट है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके आप लोग तरतीब को देखें, और इस तरतीब के मुताबिक आप लोगों ने क्या करना होगा, ये इनकम स्टेटमेंट याद करनी है, ठीक है। इसी तरतीब के मुताबिक आप लोगों ने फिर इनकम स्टेटमेंट को याद करना है, कि इस तरह ना हो कि आपसे कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएं और फिर वैल्यू जो है वो आपकी गलत आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू, ये हमारे पास पूरे साल में हमने जो सेलिंग की होती है उससे हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसको सेल रेवेन्यू कहा जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 3,74,000 जो है, सॉरी, तीन 30,74,000 जो है ये 2003 में हमारी सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है। 30,74,000, इसके 4 के आखिर में 3 जीरो है। और इस तरीके से 2002 में अगर आप लोग देखें तो 25,57,000 जो है हमारे पास सेल्स रेवेन्यू है बर्लेट कंपनी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे। ये कैलकुलेशन कैसे होती है, इसके लिए अकाउंटिंग में तरीक़ेकार है जिसमें आप पूरे जितने भी सेल्स की ट्रांजैक्शंस होती है उनको आप रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप उनको जमा करते हैं और आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास है यहाँ पे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स रेवेन्यू से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे, कि एक गुड को जब आप सेल आउट करेंगे तो उस पे कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, 20,88,000, और यहाँ पे है 17,11,000, ठीक है, 2002 में। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग सेल्स जब रेवेन्यू से जब माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों के पास है 9,86,000, और यहाँ पे है 8,56,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने माइनस करने होंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके पास सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, लीज एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये एक्सपेंसेस आपस में आप लोग जमा करेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू दी गई हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू मौजूद नहीं है तो आप लोगों ने सारे एक्सपेंसेस को जमा करना है, और उन एक्सपेंसेस को जमा करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपस में जमा करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप लोगों के पास आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, ये जब 100 प्लस 184 प्लस 135 प्लस 239, ये जितने भी आप लोग प्लस करोगे तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। और ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है आप लोगों ने 9,86,000 से माइनस करना है,
तो आप लोगों के पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये है आप लोगों के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि है 4,18,000। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा इसके साथ 330 हैं। इसी तरीके से उन्होंने 2002 के लिए भी यही तरीका किया है, इनको प्लस किया है और फिर उसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इससे ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ये माइनस किया है, तो आपके पास वैल्यू आई है 3,03,000। ठीक है, ये वैल्यू है आपके पास, और यहाँ पे वैल्यू है 4,18,000। फिर उससे आप लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि आप लोगों ने किसी से लोन लिया होगा तो उस लोन पे आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे जो कि 93,000 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 91,000 आ जाएगी, ये इंटरेस्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट इन्होंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, अगर नहीं कैलकुलेट तो आप लोगों को परसेंटेज दी होगी, उसी परसेंटेज के मुताबिक आप लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल 7% इंटरेस्ट है, तो वो 7% आपने किसका लेना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, 4,18,000, इसका 7% लेना होगा, फिर आपके पास वैल्यू आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 93,000 वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको फिर कोई भी परसेंटेज या कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करना है। फिर इसी तरीके से आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने टैक्स माइनस करना है 29%। 29% उन्होंने क्यों लिखा है? तो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर बी छोटा सा निशान है। आप लोग बुक से या नेट से बर्लैंड कंपनी की स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें तो उसको आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स रेट फॉर 2003 रिजल्ट बिकॉज द फर्म हैव सर्टेन स्पेशल टैक्स राइट ऑफ दैट डू नॉट शो अप डायरेक्टली ऑन इनकम स्टेटमेंट। तो इन्होंने कहा है कि 2003 में इनको जो है कुछ स्पेशल टैक्स जो है वो कम किया हुआ है, राइट ऑफ इसको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 29% अपना वो टैक्स शो कर रहे हैं। तो 29% क्या वैल्यू आएगी? 94,000 वैल्यू है। ठीक है, आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का 29% जब आप लोग लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 94,000। तो 325 से 94,000 माइनस करें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, और इससे आप जब प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड माइनस करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड जो कि आप लोगों ने फिक्स किया होता है, वो फिक्स होता है, वो आप माइनस करेंगे 10,000, तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। तो ये आपके पास जो है प्रॉफिट होता है, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो इसको आप लोग फिर क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट या इसको आप प्योर प्रॉफिट भी कहते हैं, जो कि आप सारे एक्सपेंसेस, टैक्स और इंटरेस्ट को देने के बाद आप लोग क्या करते हैं? हासिल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉफिट से आप फिर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो हमारे पास 2.90 है, और डिविडेंड पर शेयर पे आप कितना डिविडेंड देंगे? वो है 1.29। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट की हुई है, और यहाँ पे उन्होंने डिविडेंड भी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, कि कुछ अमाउंट जो है वो उन्होंने अपने पास रिटेन रखी है, और कुछ अमाउंट जो है उन्होंने कैलकुलेट की है, जिसके बेस पे उन्होंने जो है डिविडेंड दिए है पर शेयर पे। मतलब ये है कि आप अर्निंग पर शेयर जितनी भी है वो सारा आप डिविडेंड नहीं दे सकते, तो आपकी कुछ पॉलिसी होगी, कुछ अमाउंट अपने पास रखना होगा और कुछ अमाउंट में आप लोगों ने डिविडेंड को इशू करना होगा।